منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا کیس، شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست کچھ دیر میں لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت عالیہ کا 2 رکنی بینچ مقدمہ سنے گا، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ مریم نواز میں پیشی پر ہنگامہ آرائی کا کیس، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی درخواست ضمانت 22 ستمبر تک منظور کر لی۔ حکومتی اور اتحادی جماعتوں کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا آج اجلاس، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس اور ایف اے ٹی ایف سے متعلق بلوں کی منظوری کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی تمام اراکین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ حکومت اہم قانون سازی کے لیے ایکٹیو، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام 4 بجے شیڈیول۔ انسداد منی لانڈرنگ سمیت کئی اہم بلوں کی منظوری کا امکان۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد سینٹ نے ایکٹیو بلز کو مسترد کر دیا تھا۔ موٹروے پر خاتون سے زیادتی کا کیس، مرکزی ملزم عابد اب تک قانون کی گرفت سے باہر۔ گرفتار ملزم شفقت سے جیل میں تفتیش جاری۔ زیر حراست وقار کے برادر نسبتی عباس اور اس کے 2 بھائیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ کورونا سے 4 افراد جاں بحق، اب تک 6393 اموات۔ مہلک وائرس سے 3,03,089 شہری متاثر، 24 گھنٹے کے دوران 665 نئے مریض۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 5,936 رہ گئی۔ متحد قوم کے عزم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیفٹیننٹ ناصر نے مادر وطن کے دفاع کا فرض ادا کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آرمی چیف کا خراج عقیدت، سپہ سالار کی شہید کے گھر آمد، درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی۔ کراچی کی ملی ندی میں ایک بار پھر طغیانی پانی، سڑک پر آنے سے کورنگی کازوے پر ٹریفک متاثر۔ محمود آباد سے کورنگی انڈسٹریل ایریا اور قیوم آباد سے کورنگی کے لیے ٹریفک کو موڑ دیا گیا۔ اگلے 15 روز کے لیے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتیں ہی برقرار رہیں گی۔ وزارت خزانہ کا کوئی رد و بدل نہ کرنے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دانش بٹ۔ میں ہوں مریم ذیشان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات اس بریک کے بعد۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے کیس کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست پر آج سماعت ہو رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ مقدمہ سنے گا۔ شہباز شریف کی عدالت میں پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ معاملہ ہے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا۔ شہباز شریف اور خاندان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہے شہباز شریف نے ضمانت کے لیے، تو لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف آج پیش ہوں گے۔ عبوری ضمانت کی درخواست پر آج سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ یہ مقدمہ سنے گا۔ شہباز شریف آج پیش ہوں گے اور اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات کیے گئے ہیں۔ معاملہ ہے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا۔ عبوری ضمانت کی درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ ادھر مریم نواز کی نیب آفس میں پیشی پر ہنگامہ آرائی اور پولیس کے ساتھ جھگڑے کا معاملہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت 22 ستمبر تک منظور کر لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج ارشد حسین نے درخواست میں ضمانت پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پولیس نے جھوٹے مقدمے میں نامزد کیا، گرفتاری کا خطرہ ہے، عدالت عبوری ضمانت منظور کرے۔ عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، رانا ارشد، سبقت اللہ، سید رفاقت علی، افتخار حسین، مرزا جاوید کی درخواست ضمانت 22 سپتمبر تک منظور کر لی۔
अहम खबर देंगे आपको। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास। FATF से मुतालिक बिल मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग दूसरा तरमीमी बिल भी मंजूर किए जाने के लिए आज पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट ने FATF से मुतालिक बिलों को मुस्तरद किया था, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस बिल की मंजूरी, इन तमाम बिल्स की मंजूरी बड़ी अहम है, क्योंकि FATF की जो ग्रे लिस्ट है पाकिस्तान ने उससे निकलना है, तो इसके लिए ये कार्रवाई ज़रूरी होगी। तो आज हुकूमत फिर से एक्टिव है। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी है। FATF से मुताल्लिक बिल मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास में आज पेश किए जाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। अदील, सूरत हाल क्या है? इजीली पास हो जाएंगे आज? जी, यकीनन हुकूमत के लिए ये इतना आसान टास्क नहीं है। FATF की रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन इस मरतबा और जो इससे पहले पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास था जिसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल आया था, उसमें और इसमें एक फर्क जो है वो नजर आता है कि उस वक्त अपोजिशन की जो तरामीम थी वो हुकूमत ने तस्लीम कर ली थी और उसके बाद वो बिल जो है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आसानी से पास हो गया था। लेकिन इस मरतबा ये सेनेट से मुस्तरद शुदा है, क्योंकि इससे पहले जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल था वो सेनेट से मुस्तरद नहीं हुआ था, लेकिन वो सेनेट में पेश होने के बाद 90 दिन के अंदर मंजूर नहीं हुआ था। इस मरतबा जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि FATF की का जो तकाजा है वो ये नहीं है कि जो नॉन कॉग्निजेबल को कॉग्निजेबल बनाया जाए, यानी गिरफ्तारी से कबल इजाजत लेने का मामला है ना जो अदालत का, उस पे अपोजिशन को एतराज था। ये सेक्शन 12 है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल के हवाले से, तो उस पर अपोजिशन को एतराज था। लेकिन हुकूमत जो है वो कॉन्फिडेंट नजर आती है इस हवाले से कि हम ये बिल मंजूर करवा लेंगे, लेकिन सिचुएशन जो है वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल की तरह पार्लियामेंट के जो गुज़िश्ता इजलास है उस जैसी नजर नहीं आती। तो इस हवाले से दो बिल हैं जो कि FATF की रिक्वायरमेंट थी, जिनके लिए यूं तो डेडलाइन 15 सितंबर की थी, लेकिन ये मामला जो है ये थोड़ा सा आगे चला गया। बहरहाल इस हवाले से दो बिल हैं जिसमें इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल है, दारुल खिलाफा वक्फ इमलाक बिल। दूसरा जो बिल है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल में दूसरी तरमीम का बिल है, और इसमें जो एतराज है अपोजिशन को वो सिर्फ एक क्लॉज के ऊपर है, सेक्शन 12 के हवाले से। तो इस हवाले से आज ये जब बिल जो है जब ये सेनेट से मुस्तरद हुआ था इससे पहले, तो कौमी असम्बली में तहरीक पेश करके बाबर अवान ने इसको फिर रेफर करवाया गया, और जब पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास बुलाने का मकसद सिर्फ FATF रिलेटेड कानून साजी है, और हुकूमत का ये ख्याल है कि ये बिल जो है हम पास करवा लेंगे। ठीक है, सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी आज शाम तक। शुक्रिया आदिल, आपने अपडेट किया। आगे खबर है पेशावर से। एक ही सरकारी स्कूल के 7 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। असातिज़ा का ताल्लुक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 कैंट से है। महकमे तालीम ने तस्दीक की है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते कबल असातिज़ा के कोरोना टेस्ट कराए गए थे। कोरोना से मुतासर असातिज़ा में से कोई भी तलबा से नहीं मिला है। अहम खबर पेशावर से आप तक पहुँचा रहे हैं। 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया गया था। अब खबर ये आ रही है कि एक ही सरकारी स्कूल के 7 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जाकिरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जाकिरुल्लाह, खुशकिस्मती ये है कि किसी भी उस्ताद की तलबा से मुलाकात नहीं हुई है। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज से जितने भी तालीमी इदारे हैं, हायर सेकेंडरी है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, वो बाकायदा तौर पर खुल चुके हैं। लेकिन एक हफ्ता कबल जो असातिज़ा हैं उनके टेस्ट कराए गए थे, तो उसमें हायर सेकेंडरी कैंट नंबर 1 स्कूल जो है उसकी तकरीबन 7 असातिज़ा के टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं। लेकिन DO का मौक़िफ़ यही है कि अभी तक ये असातिज़ा जो है वो क्लासेस के लिए नहीं आए थे और न ये स्टूडेंट से मिल चुके हैं। मरहलावार दीगर असातिज़ा के टेस्ट भी कराए जाएंगे, उनमें पता चलेगा कि दीगर असातिज़ा में कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं है। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जितने भी असातिज़ा के कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए हैं, तो उसके लिए ये सूपीस जारी किए गए हैं कि वो खुद को क्वारंटाइन करे और स्कूल आने से गुरेज करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाकिरुल्लाह, आपने अपडेट किया।
दूसरी जानिब वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कुरंगी के मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों का दौरा किया है। सूबाई वज़ीर ने स्कूल में SOPs के हवाले से तफसीलात तलब की। निजी स्कूल्स की जानिब से इक़दाम बेहतर हैं। वज़ीर तालीम सईद गनी का ऐसा कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि कोशिश की जाए बगैर मास्क कोई तालिब इल्म, टीचर या गैर तदरीसी अमला ना हो। 6 माह बाद कल ही स्कूल्स खोले गए हैं, तो ऐसे में वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कुरंगी के मुख्तलिफ सरकारी स्कूल और निजी स्कूल्स के दौरे पर निकल पड़े हैं। आज सूबाई वज़ीर ने स्कूल्स में SOPs के हवाले से तफसीलात तलब की हैं और ये जायज़ा भी लिया है कि SOPs पर अमल दरामद हो भी रहा है या नहीं। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं, क्लास रूम्स के अंदर जाकर उन्होंने जायज़ा लिया है और सईद गनी कहते हैं कि निजी स्कूल्स की जानिब से इक़दामात बेहतर हैं। अभी बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे। मुशीर कौमी सलामती मोहिद यूसुफ मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। अमन अफगानिस्तान में ये बात दुरुस्त नहीं होगी। पाकिस्तान जो कर सकेगा करेगा, लेकिन ये फैसला अफगान खुद मिल बैठ के करेंगे और पाकिस्तान की सपोर्ट होगी जो फैसला वो करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पे ये ब्लेम नहीं आ सकता अगर आगे जाके खुदा न खास्ता कोई हिकअप्स आए, कोई रुकावटें आई उस प्रोसेस में। और चौथी और आखिरी बात हमने ये की कि दुनिया तो बड़ी बात करती है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की, दुनिया बात करती है एक दूसरे के से लड़ाई की। हमारा मशरकी हमसाया जो कर रहा है वो हमारे सामने है। पाकिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी की बात करता है, पाकिस्तान इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करना चाहता है। आपने हमसे राहदारी लेनी है, हम रशिया को, चाइना को, सेंट्रल एशिया को राहदारी देना चाहते हैं। हम गवादर पोर्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम अफगानिस्तान में अमन इसलिए चाहते हैं कि सेंट्रल एशिया जो है वो उसकी एक्सेस हम तक आए। तो अगर आपने ये पूछना है कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान CPEC पे जा रहा है, पाकिस्तान सेंट्रल एशिया पे एक्सेस हासिल करने जा रहा है। तमाम चीज़ों का मकसद क्या है? पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और पाकिस्तान को आप देखिए एक मेल्टिंग पॉट के तौर पे कि दुनिया के जितने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो यहाँ आके मिलते हैं, ना कि प्रॉक्सी वॉर्स और जो पुराना ज़माना चलता था। तो ये 4 बुनियादी